Kindly take your seats. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Dev Sarva Karyeshu Sarvada. With invocation to Lord Ganesha, now I show my deep sense of gratitude in welcoming our Chief Guest Professor D.P. Singh Sir, Education Advisor to Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Rajiv Kotiwal Sir, Honorable Chancellor, IFTM University, Shri Abhinav Kotiwal Sir, Honorable Pro Chancellor, Professor Mahendra Prasad Pandey Sir, Honorable Vice Chancellor, Professor Sanjeev Agarwal Ji, Registrar, all learned dignitaries, members of the sponsoring body, members of the governing body, members of the Executive Council, members of the Academic Council, esteemed dignitaries from district administration, dear friends from media, members of the university family, and dear graduates to the 7th convocation of IFTM University. As a symbol of respect and our traditional way of welcoming, I now request the student volunteers to present the sapling and pinning of badges. Honorable Chancellor Shri Rajiv Kotiwal Sir, Honorable Pro Chancellor Shri Abhinav Kotiwal Sir, Honorable Vice Chancellor Professor Mahendra Prasad Pandey Sir, Registrar Professor Sanjeev Agarwal Sir, thank you volunteers. Saraswatim cha tam naumi vagdhishtatra devatam devatvam pratipadyante yadnugrato jana. Salutation to Devi Saraswati, goddess of wisdom and oratory skills, by whose grace person become divine. To begin this auspicious occasion, may I now invite all dignitaries sitting on the stage to invoke Almighty Ma Saraswati by lighting of lamp, garlanding of Ma Saraswati, and flower tribute to our founder chairman, late Shri Omkar Saran Kotiwal Sir.
Thank you, sir. Now I would request the students to recite the University Kulgeet. ज्ञान पुंज ज्योतिर्मय किरणें, ज्ञान पुंज ज्योतिर्मय किरणें, धारण किए शांति कण कण में, विश्वविद्यालय का भवन मनोरम, विश्वविद्यालय का भवन मनोरम, नमन है तुझको IFTM, नमन है तुझको IFTM। और कठिन परिश्रम इन तीनों का है ये संगम, ज्ञान अर्जन और कला का, ज्ञान अर्जन और कला का, अति मनोहर दिव्य उद्गम। ओंकार का है ये तपोवन, ओंकार का है ये तपोवन, नमन है तुझको IFTM, नमन है तुझको IFTM। रहा है भविष्य राष्ट्र का सींच रहा है, देकर स्वावलंबन का गुण, देकर स्वावलंबन का गुण, कौशल सुलभ सुनीत रहा है। नित्य शिक्षण का करना मंथन, नित्य शिक्षण का है तुझको IFTM, नमन है तुझको IFTM। सर्व पंथ का स्वागत करती, भेदभाव न किसी से करती, प्रगति पथ पर चलती निरंतर, प्रगति पथ पर चलती निरंतर, ज्ञान सृजन की है ये धरती, हृदय से करते हम अभिनंदन, हृदय से करते हम अभिनंदन, नमन है तुझको IFTM, नमन है तुझको IFTM। विद्यादायिनी हंसवाहिनी सरस्वती माँ बुद्धि प्रदायिनी, इस प्रांगण के तुम कण कण में, इस प्रांगण के तुम कण कण में विद्यमान हो माँ सुखदायिनी, पाकर पुलकित है ये तन मन, पाकर पुलकित है ये तन मन, नमन है तुझको IFTM, नमन है तुझको IFTM। रेलखंड के नभ पर देखो पूर्ण तेज से दमक रहा है, पीतल नगरी के ललाट पर, पीतल नगरी के ललाट पर, ये दिन कर सा चमक रहा है, कर रहा है नित ज्ञान का सृजन, कर रहा है नित ज्ञान का सृजन, नमन है तुझको IFTM,
तुझको IFTM, नमन है तुझको IFTM। Thank you, students. Nasti tasmai shri guruve namah. With obeisance to Almighty and Gurus, this is my honor and privilege to now invite our Registrar Shri Sanjeev Agarwal ji to commence this sacred ceremony. Declare the convocation open. I declare the convocation open. I request Honorable Vice Chancellor to welcome the chief guest and present the annual report of the university. हमारे बीच पधारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर डीपी सिंह जी का मैं स्वयं अपने और समस्त विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं। माननीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री राजीव कोठीवाल जी, आदरणीय प्रति कुलाधिपति श्री अभिनव कोठीवाल जी, IFTM सोसाइटी की सम्मानित सदस्या श्रीमती मंजू कोठीवाल जी, श्रीमती रश्मि कोठीवाल जी, डॉक्टर समा अग्रवाल जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी, जिला प्रशासन से आए सभी सम्मानित अधिकारीगण, गवर्निंग बॉडी के सम्मानित सदस्य डॉक्टर JK मिश्रा जी एवं एडवोकेट सुभाष माथुर जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सम्मानित सदस्य व पंतनगर विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रोफेसर AK स्वामी जी, एकेडमिक काउंसिल के सम्मानित सदस्य व IIT BHU वाराणसी के प्रोफेसर AK झा, पंतनगर विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रोफेसर RCS मेहता, प्रोफेसर KK पांडे, गेस्ट अभिभावकगण, मीडिया से आए सभी सम्मानित बंधुजन एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। परम आदरणीय प्रोफेसर DP सिंह जैसी महान विभूति को आज अपने समक्ष पाकर विश्वविद्यालय परिवार अभिभूत है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। IFTM की शुरुआत एक संबद्ध संस्थान के रूप में 1996 में 2 कमरों से हुई और आज इस संस्थान ने करीब 70 एकड़ भूमि के विशाल परिसर के साथ एक निजी विश्वविद्यालय के रूप में अपना विस्तार किया है। विश्वविद्यालय में 9 विभिन्न संकायों के अंतर्गत 29 विभागों के माध्यम से 82 प्रोग्राम्स का गुणवत्तापूर्वक संचालन हो रहा है। विद्यार्थियों का प्रवेश संबंधित पाठ्यक्रम की काउंसलिंग के माध्यम से एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत किया जाता है तथा समय समय पर एडमिशन टीम द्वारा इस प्रक्रिया की समीक्षा भी की जाती है। इस समय विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की कुल संख्या लगभग 11,000 है। वर्तमान सत्र में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं की संख्या 4,872 है, जिनमें 3,842 छात्र और 1,030 छात्राएं शामिल हैं। इस समारोह में 77 गोल्ड मेडल सहित कुल 2,792 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें 68 PhD की डिग्री भी शामिल है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपनी स्थापना से लेकर के विश्वविद्यालय अब तक कुल 324 PhD की डिग्रियां प्रदान कर चुका है। विश्वविद्यालय में 572 नॉन टीचिंग स्टाफ एवं 494 टीचिंग स्टाफ कार्यरत हैं। हमारे शिक्षकों में 212 शिक्षक PhD डिग्री धारक हैं। शेष में अधिकतर नेट JRF क्वालिफाइड हैं।
उल्लेखनीय है कि हमारे लगभग 55% शिक्षक IIT, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से पठन पाठन तथा शोध कार्य के लिए चुने गए हैं। वर्तमान सत्र के दौरान विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के फैकल्टी मेंबर्स के 500 से अधिक क्वालिटी पेपर्स व 224 से अधिक पेटेंट्स प्रकाशित होने के साथ ही भारत व अन्य बड़े बड़े देशों से 23 पेटेंट्स ग्रांट भी हुए हैं, जो कि गत वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 88 लाख रुपए की धनराशि सीड मनी के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा अपने फैकल्टी मेंबर्स को दी जा चुकी है। विश्वविद्यालय में कंसल्टेंसी पॉलिसी लागू है तथा इस वर्ष लगभग 70 लाख रुपए की कंसल्टेंसी रेवेन्यू जनरेट हुई है और इसी पॉलिसी के तहत लगभग 42 लाख रुपए की धनराशि फैकल्टी मेंबर्स को प्रदान की जा चुकी है। विश्वविद्यालय द्वारा फैकल्टी मेंबर्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों और सम्मेलनों में प्रतिभाग करने के लिए सदैव से प्रेरित किया जाता रहा है। इस हेतु उन्हें 17.5 लाख रुपए की धनराशि सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, FDP इत्यादि में प्रतिभाग हेतु प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय में अभी तक फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, फैकल्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संकायों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूर्ण रूप से लागू है तथा इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एवं उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के अनुपालन में 10 सेल्स और एक टास्क फोर्स का गठन भी किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 50 से अधिक एक्टिविटीज कराई भी जा चुकी हैं। विश्वविद्यालय की एक अन्य उपलब्धि IFTM बिजनेस इंक्यूबेशन फाउंडेशन की स्थापना है, जो कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इस इंक्यूबेशन सेंटर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत 2.25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता में से लगभग 8 लाख रुपए की पहली किस्त प्राप्त भी हो चुकी है। यह गर्व का विषय है, विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लगभग 57 क्रियात्मक MOUs स्थापित किए हैं। इन MOUs के माध्यम से इंडस्ट्री एकेडमिया सेल के तहत हमारे विद्यार्थी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में काफ़ी सहयोग पा रहे हैं। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि गत वर्षों में हम अपने विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, रेडिको खेतान, इंडस टावर, बजाज मोटर्स इत्यादि में आकर्षक वेतन पर प्लेसमेंट के काफ़ी अच्छे अवसर प्रदान कराने में सफल रहे हैं। विश्वविद्यालय में महिला सशक्तिकरण एवं नारी स्वावलंबन की दिशा में कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण हेतु समर्थ योजना का शुभारंभ हुआ है। इस योजना के अंतर्गत फैशन डिजाइनिंग का निःशुल्क कोर्स कराया जाता है, जिस हेतु विश्वविद्यालय में एक लैब भी स्थापित है। पहले से ही विश्वविद्यालय द्वारा परिसर के समीपस्थ 5 गांवों को उनके सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु गोद लिया हुआ है। विश्वविद्यालय में उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत गठित टीम द्वारा किसान मेला, पुष्प प्रदर्शनी, किसानों को गुणवत्तापरक बीज वितरण इत्यादि जैसी गतिविधियां निरंतर कराई जाती हैं। ग्रामीण विकास में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए ग्राम प्रधानों और किसानों के साथ समय समय पर बैठकें भी आयोजित की जाती हैं तथा इन गांवों को विश्वविद्यालय की ओर से हर संभव मदद भी दी जाती है। हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए हुए गांव में नारी स्वावलंबन केंद्रों की स्थापना की गई है और प्रत्येक गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हाथ व पैर से चलाई जाने वाली 5-5 सिलाई मशीनें स्थापित की गई हैं। साथ ही दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु ट्राईसाइकिलों का वितरण भी विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए हुए गांवों में किया गया है। विश्वविद्यालय ने
5 टीबी मरीजों को भी आवश्यक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने व उनका मनोबल बढ़ाने हेतु गोद लिया हुआ है। इस वर्ष भी विश्वविद्यालय के 11 छात्र छात्राओं ने उच्च परसेंटाइल और स्कोर के साथ नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि IFTM विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा निजी विश्वविद्यालय है जिसे पूर्व में वर्ल्ड बैंक से 6 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोजेक्ट के रूप में मिल चुकी है। हम नियमित अंतराल पर NCC तथा NSS कैंप्स के अतिरिक्त नियत तिथियों में एक्टिविटीज जैसे कि इंजीनियर्स डे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, अर्थ डे इत्यादि कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही शासन की गाइडलाइंस के अनुपालन में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। सत्र 2021-22 में विभिन्न पाठ्यक्रमों के मेधावी विद्यार्थियों और समाज में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को लगभग 2.5 करोड़ रुपए की शुल्क में छूट दी गई है। विश्वविद्यालय द्वारा भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए छात्राओं को शिक्षण शुल्क में विशेष छूट दी जाती है। इसी अभियान के तहत विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए हुए 5 गांवों की बालिकाओं हेतु गत वर्ष से नव्या बालिका छात्रवृत्ति योजना आरंभ की जा चुकी है, जो कि भविष्य में भी जारी रहेगी। इस योजना के तहत आयोजित हुई परीक्षा में सफल रही 5 छात्राओं को उनकी रुचि के प्रोग्राम को करने की निःशुल्क सुविधा विश्वविद्यालय प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों के व्यवधान रहित पठन पाठन हेतु 100 किलोमीटर की परिधि में संचालित 90 से अधिक बसों की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क दी जाती है। आपसे यह भी साझा करना है कि बालिकाओं के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से बस की व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाती है। गत वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा बीएड के छात्र को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सिलेक्शन होने पर प्रशस्ति पत्र सहित 51,000 रुपए की धनराशि से पुरस्कृत भी किया गया था। विश्वविद्यालय परिसर में टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों के लगभग 210 परिवार निवास कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि नॉन टीचिंग कर्मचारियों को आवास व बिजली की पूर्णतः सुविधा निःशुल्क है। विश्वविद्यालय में टीचिंग स्टाफ हेतु 10 लाख रुपए और नॉन टीचिंग स्टाफ हेतु 5 लाख रुपए की बहुत ही कम प्रीमियम पर जोखिम भरे बीमे की विश्वविद्यालय द्वारा सुविधा दी गई है। इसके अतिरिक्त 21,000 रुपए से कम मासिक वेतन पाने वाले नॉन टीचिंग स्टाफ को ESIC स्कीम लागू की गई है, जिसके अंतर्गत संबंधित अस्पतालों में उन्हें और उनके परिवारजनों को निःशुल्क इलाज व जीवन बीमा की व्यवस्था भी है। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के लिए रुपए 1 लाख रुपए की जोखिम भरे बीमे की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है। परिसर में एम्बुलेंस समेत सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त डिस्पेंसरी की सुविधा 24/7 उपलब्ध है। परिसर में 3 नेशनलाइज्ड बैंक्स ATM सहित उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय डाकघर की उपशाखा भी संचालित है। विश्वविद्यालय पूर्व विद्यार्थियों के साथ सदैव ही प्रगाढ़ संबंध बनाए रखने की दृष्टि से विश्वविद्यालय में IFTM यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन स्थापित है, जो कि सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत भी है। आज दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे पूर्व विद्यार्थी समाज में उच्च पदों पर अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। आज अपने बीच उपस्थित कुछ पूर्व विद्यार्थियों को हम उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी करेंगे। अपने पूर्व विद्यार्थियों के साथ हमारे हमेशा ही संबंध मजबूत रहे हैं तथा हमने इन्हें सतत
कठिन परिश्रम करते हुए देखा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूर्व विद्यार्थी प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहें। मुझे आप सभी से यह भी साझा करना है कि इस संस्था के विकास हेतु हमारे पूर्व विद्यार्थियों की ओर से अब तक 1,03,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता IFTM यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन को प्राप्त हो चुकी है, जिसमें वर्तमान सत्र की प्राप्त हुई 9 लाख रुपए की धनराशि भी शामिल है। मैं आप सभी के मंगलमयी भविष्य की शुभकामना करता हूं। भविष्य की योजनाओं में सभी एम्प्लॉइज और उनके परिवारजनों को ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराना, पैरामेडिकल के क्षेत्र में नए प्रोग्राम्स प्रारंभ करना, रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में और अधिक बल देना, 1000 व्यक्तियों की क्षमता के सभागार का निर्माण कार्य इसी माह प्रारंभ हो चुका है। विश्वविद्यालय वर्ष 2017 से नए एक्रीडेटेड है तथा द्वितीय चरण के एक्रीडिटेशन हेतु IIQA का अप्रूवल मिल चुका है। तदक्रम में SSR भरे जाने की तैयारी IQAC के अलग भवन में तीव्र गति से चल रही है। विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या की प्रस्तुति के साथ मैं विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाएं भी व्यक्त करना चाहता हूं। इस दिन की स्मृति आपके जीवन यात्रा के सबसे यादगार पलों में से एक रहेगी। आज आपका एक सपना साकार हो रहा है। प्रिय उपाधिधारकों, आपको वर्तमान परिवेश के चैलेंजेस का सामना करने और आने वाली प्रत्येक अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। जीवन की यात्रा चैलेंजेज और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर के आती है। इसके लिए आपको नवीनतम ज्ञान से परिपूर्ण रहना होगा। आप चैलेंजेस का सामना करते हुए अपॉर्चुनिटीज को समय प्राप्त करके निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आप सभी के उज्जवल, सफल व सुखद भविष्य की शुभकामना करता हूं। मैं पुनः आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद व आभार ज्ञापित करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. With the permission of Honorable Chancellor, may I now request the faculty deans to present the graduates. The Dean, Faculty of Engineering and Technology. Sir, I, Professor Vishal Saxena, Dean, Faculty of Engineering and Technology, present unto you 512 graduates as per Annexure A of the proceeding, who have been examined and found qualified during the session 2021-22 for PhD 5, MTech 64, BTech 182 and Diploma 261, to which I pray those present may be admitted. I now request all these graduates to rise from their seats and keep standing till the oath ceremony is over. The Dean, Faculty of Commerce and Management Studies. Sir, I, Professor Nisha Agrawal, Dean, Faculty of Commerce and Management Studies, present unto you 265 graduates as per Annexure B of the proceeding, who have been examined and found qualified during the session 2021-22 for PhD 4, MBA 51, MCom 20, BBA 66, BCom Honors 34, BCom 67, BHMCT 11, MTTM 1 and DHM 11, to which I pray those present may be admitted. I now request all these graduates to rise from their seats and keep standing till the oath ceremony is over. The Dean, Faculty of Pharmacy. Navneet Verma, Dean, Faculty of Pharmacy, present unto you 367 graduates as per Annexure C of the proceedings, who have been examined and found qualified during the session 2021-22 for PhD 20,
M Form 45, B Form 187, D Form 115, to which I pray those present may be admitted. I now request all these graduates to rise from their seats and keep standing till the oath ceremony is over. The Dean Faculty of Sciences. Sir, I, Professor V.K. Singh, Dean, Faculty of Sciences, present unto you 447 graduates as per Annexure D of the proceedings who have been examined and found qualified during the session 2021 to 22 for PhD 7, MSc 197, BSc Honours 18, BSc 225, to which I pray those present may be admitted. I now request all these graduates to rise from their seats and keep standing till the oath ceremony is over. The Dean Faculty of Computer Science and Applications. Sir, I, Professor Rahul Kumar Mishra, Dean, Faculty of Computer Science and Applications, present unto you 311 graduates as per Annexure E of the proceedings, who have been examined and found qualified during the session 2021-22 for PhD 11, MCA 82, MTech 5, BCA 127, BTech 46, Diploma 33, and PGDCA 7, to which I pray those present may be admitted. I now request all these graduates to rise from their seats and keep standing till the oath ceremony is over. The Dean Faculty of Social Sciences. Sir, I, Professor Rajkumar Singh, Dean, Faculty of Social Sciences, present unto you 418 graduates as per Annexure F of the proceeding, who have been examined and found qualified during the session 2021-22 for PhD 11, MA 53, MAJ 5, MSW 1, MLib 13, MAd 46, BAJ 8, BLib 11, BA 100, and BEd 170, to which I pray those present may be admitted. I now request all these graduates to rise from their seats and keep standing till the oath ceremony is over. The Dean Faculty of Law. Sir, I, Professor Shyam Bihari Mishra, Dean, Faculty of Law, present unto you 138 graduates as per Annexure G of the proceeding, who have been examined and found qualified during the session 2021-22 for PhD 5, LLM 52, and LLB 81, to which I pray those present may be admitted. I now request all these graduates to rise from their seat and keep standing till the oath ceremony is over. The Dean Faculty of Biotechnology. Sir, I, Dr. Tanzeel Ahmed, Dean, Faculty of Biotechnology, present unto you 166 graduates as per Annexure H of the proceeding, who have been examined and found qualified during the session 2021-22 for PhD 3, MTech 11, MSc 64, BTech 32, BSc 56, to which I pray those present may be admitted. I now request all these graduates to rise from their seats and keep standing till the oath ceremony is over. The Dean Faculty of Agricultural Sciences and Engineering.
Sir, I, Dr. Viren Singh, Dean Faculty of Agriculture Sciences and Engineering, present unto you 165 graduates as per Annexure I of the proceeding, who have been examined and found qualified during the session 2021-22 for PhD 2, MSc 17, MTech 5, BTech 23, and BSc 118, to which I pray those present may be admitted. I now request all these graduates to rise from their seats and keep standing till the oath ceremony is over. I now request Registrar Sir for admission of in absentia graduates. I pray that the graduates who have been examined and found qualified for the respective degrees in various faculties but could not present themselves in person at the convocation be admitted to their respective degrees in absentia. May I now request the Honorable Chancellor to admit the graduates, those who are present and those who are absent, to their respective degrees. Hello, I, FTM University. I admit the graduates present and those who are absent to their respective degrees of Doctor of Philosophy, Postgraduate, Undergraduate, and Diploma certificates of the university, and charge them that in their life and conduct they prove themselves worthy of the same. Of integrity to the graduates. Practice virtue. Do not neglect the study. Do not neglect learning and teaching. Respect your mother. Respect your father. Respect your teacher. Respect your guest as a god. Be honest to your country. This is the commandment. This is the teaching. This is the true purport. This is the instruction. Bear this well in the heart and act in good behavior and conduct. I do promise. I request all the graduates to take their seats now. May I now request the Honorable Chief Guest and Honorable Chancellor Sir to please come forward to award the PhD degrees. Now I request PhD degree recipients to come on stage as per the list for receiving the PhD degrees. Technology, Stuti Bhatnagar in Biotechnology. Chinu Chaudhary in Chemistry, Anuj Bhatnagar in Chemistry, Pallavi Deval Chemistry, Nitin Kumar Agarwal Commerce, Sanjay Arora Computer Science and Applications.
Lalit Johari in Computer Science and Applications, Rajdeep Singh, Computer Science and Applications, Sunil Kumar, Computer Science and Applications, Amit Bhatnagar, Computer Science and Applications, Manish Ranjan Pandey, Computer Science and Applications. Tanushri in Computer Science and Engineering, Ajay Kumar Gupta, Computer Science and Engineering. May I also request Honorable Pro Chancellor Sir and Noble Vice Chancellor Sir to come forward. Satvir Singh, Education, Amit Kumar Mittal, Education, Manjulata Sharma, Education, Avdesh Kumar Dikshit, Computer Science and Engineering, Sanjeev Kumar, Electrical Engineering, Shilpi Pal, Electronics and Communication Engineering, Navjeet Kaur, English, Hemant Kumar Jha, English, Shaleen Sharma, English, Rohit Sharma, English. Arun Kumar Singh, Law, Manisha Matolia, Law, Amit Verma, Law, Ritu Chaudhary, Management. Gurpreet Singh in Management, Josna Rai, Management, Ruchi Bansal, Mathematics, Sanjay Kumar Yadav, Pharmacy.
निकिता सारस्वत फार्मेसी, शोम प्रकाश कुशवाहा फार्मेसी, संगीता रानी फार्मेसी, सुचेता फार्मेसी, श्रेया कौल फार्मेसी। Requesting registrars are also to please join the dignitaries. Come forward. शहबाज खान फार्मेसी, मोहम्मद आबिद फार्मेसी, अश्विन कुमार सक्सेना फार्मेसी, अमित कुमार निगम फार्मेसी, सैयद शारिक मियाँ फार्मेसी, रविंद्र कुमार मेहरा फार्मेसी। सैयद सलमान अली फार्मेसी, मोहम्मद उबैद फार्मेसी, गरिमा वर्मा फार्मेसी। गगनदीप कौर बॉटनी, I request all the dignitaries standing on the dais. I am going to start the gold medalist. I request the gold medalist of the year 2022 to come on stage as per the list for receiving the gold medal and certificate. Thank you, sir. Ishika Lism, Harsha Rani, BA, Vikas Saini, Bilib, Samira Asif Lari, BA B.Ed, इमरा आकिल MA इकोनॉमिक्स। मथी यामिनी प्रिया MA इंग्लिश, भारत जोशी MA ज्योग्राफी, शिवांगी शर्मा MA जर्नलिज्म, आंचल शर्मा MLib, फौजिया M.Ed।
दिव्या जोशी BSc B.Ed, गौतम रस्तोगी BBA, अदीबा BCom, तानिया कौशिक BCom ऑनर्स, अनुज कुमार सिंह BHMCT। सिद्धि सिंगल from MBA, Akansha Gupta from MCom, Shajin from BSc Microbiology, Aditi Vashne BSc Food Technology, Paridhi Gupta MSc Biotechnology। सिद्धि सिंगल MBA, Akansha Gupta MCom, Shajin from BSc Microbiology, Aditi Vashne BSc Food Technology, Paridhi Gupta MSc Biotechnology, Himani Pal MSc Micro, Joya Naved BTech Biotechnology, Selina Vishnoi Home Science BSc, Ritu Kaur BSc PCM। जूही कपूर BSc ZBC,
लक्ष्यजीत बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, अनुप्रिया बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बुशरा जावेद एमएससी केमिस्ट्री, वंदना एमएससी होम साइंस। प्रज्ञा राजपूत एमएससी मैथमेटिक्स, मोहम्मद मोहसिन एमएससी फिजिक्स, तविंदा साबिर एमएससी जूलॉजी। तनुश्री बी फार्म, अनुराग शर्मा एम फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, अरविंद राघव एम फार्म फार्मास्यूटिक्स, नवनीत ठक्कर एम फार्म फार्माकोनोसी, रश्मि पाठक एम फार्म फार्माकोलॉजी। यतीश कुमार बीसीए, वृंदा त्यागी एमसीए, कनक लता मिश्रा पीजीडीसीए। सौरभ अग्रवाल एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जयवीर प्रताप सिंह बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, मोहम्मद आजम बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मुनीश कुमार एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, श्वेता मिश्रा एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पुनीत एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बालविंदर कुमार एमटेक सिविल इंजीनियरिंग,
Diksha Sagar, MSc Agriculture, Agronomy. Abhijit Chauhan, MSc Agriculture, Horticulture, Floriculture and Landscaping. Mohammad Azim, LLB. Shashti Singh, Integrated BA LLB. Prajwal Bindal, Integrated BB LLB. Shrishti Singh, MTech Biotechnology. Aditya Saxena, Diploma Civil Engineering. One PhD recipients, Sanjay Yadav, Mechanical Engineering. Thank you, sir. Thank you. Please have a seat. I am extremely overwhelmed to have the opportunity for introducing and felicitating our distinguished alumni and giving them honor for their talents in their respective areas. I wish they keep on making us proud and achieve the highest human values. For the same, may I now request the Honorable Chief Guest and Honorable Chancellor Sir and all the dignified members on the dais to come forward to give away the Distinguished Alumni Awards. Mr. Mukesh Kumar Dheda is doing excellent work in the field of training and development in pharmaceutical sciences, clinical research and life science. MBA 2008 batch. He is currently the director, Red Bricks Realty, with the office at Noida and Dubai, one of the leading businessmen and a top player in real estate business. He has carved his own niche at both national and international level. Since years in this domain, he has helped countless clients across the countries like India, USA, Singapore, Europe with vast investment and financial advisories. Mr. Ankit Bajpai, BTech Electronics and Communication 2009 batch. He is manager, Indus Towers Limited, Noida. He has proved that only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work
for them. Mr. Gaurav Verma, Diploma Mechanical Engineering 2016 batch. He is a senior executive in network planning at Bharti Airtel Limited, Gurugram. Through his multi-talented approach, he is continuously contributing to help the company reach new heights. Thank you, sir. Now, this is my honor to introduce our Honorable Chief Guest, Professor D.P. Singh Sir, amongst you all. Before inviting D.P. Singh Sir to share his words of wisdom, I am profusely overjoyed to take the opportunity to share his brief profile. Professor Dhirendra Pal Singh Sir is serving Government of Uttar Pradesh as Education Advisor to Honorable Chief Minister. Professor Singh Sir has held several academic leadership positions in Indian higher education in a career spanning close to 4 decades. He led 3 universities as Vice Chancellor: PHU Varanasi, Dr. H.S. Gaud University Sagar, Devi Ahilyabai University Indore. He is the former Director of National Assessment and Accreditation Council. He has also served as a Chairman of the University Grants Commission. Professor Singh has about 34 years of professional experience in different aspects of educational planning and administration, institution building, teaching and training, research and development, international cooperation in various capacities in different institutions. Professor Singh Sir has contributed substantially in the planning and management of Indian higher education ecosystem. He has contributed as a member of Central Advisory Board of Education, ICCR, Indian National Commission for Cooperation with UNESCO, RUSA, Implementation Committee of National Education Policy 2020, etc. As Chairman, UGC, he guided 8 inter-university centers of UGC as a President of Governing Councils. Professor Singh Sir has excellent exposure of international level programs and experience of handling international projects. He has widely traveled and visited United Kingdom, USA, Germany, France, Norway, China, Australia, Hong Kong, Mauritius, etc. for academic pursuits. He has participated in several international seminars, conferences as chairperson, group leader, invited speaker and delegate. Professor D.P. Singh Sir has been bestowed with several honors and awards, including Environment Leadership Award, Raja Balwant Singh Shiksha Samman, National Builder Award, etc. The man of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge and experience and inspiration to all of us. Sir, you have motivated us all by being a living example of kindness and selfless service to the nation. Now, with due regards, I request Registrar Sir to invite our Chief Guest, Professor D.P. Singh Sir, to address the audience. Very humbly, now may I request our Honorable Chief Guest, Professor D.P. Singh, to kindly deliver the convocation address on this momentous occasion for IFTM University. IFTM विश्वविद्यालय अहमदाबाद के माननीय कुलाधिपति श्री राजीव कोठीवाल जी, प्रो चांसलर श्री अभिनव कोठीवाल जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद पांडे जी, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, कुल सचिव डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली के पूर्व कुलपति आदरणीय प्रोफेसर आर.के. पांडे जी, विश्वविद्यालय की शासी निकाय, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सम्माननीय सदस्यगण, समस्त शिक्षक साथी, अधिकारी बंधुओं, कर्मचारीगण, प्यारे विद्यार्थियों, आमंत्रित देवियों, सज्जनों,
पत्रकार साथियों, रामगंगा नदी के तट पर बसे बहुसांस्कृतिक परंपराओं के शहर तथा भारत की पीतल नगरी दी ब्रास सिटी ऑफ इंडिया मुरादाबाद में स्थित IFTM विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अपनी गौरवशाली परंपरा को सहेजते हुए अपने विद्यार्थियों की उपलब्धियों को सराहने का दिन होता है। इस अवसर पर मैं सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बधाई देता हूं, जो अपने अथक प्रयास, बौद्धिक क्षमता एवं व्यावहारिक अनुशासन के द्वारा इस दिन की सार्थकता के साक्षी बने हैं और यह विश्वविद्यालय उन्हें पदक और उपाधियों से अलंकृत कर इस दिन को आप सभी के लिए चिरस्मरणीय बना रहा है। आज आप दीक्षित होकर अपनी भविष्यगामी यात्रा की ओर बढ़ने वाले हैं। आज का यह दीक्षांत समारोह आप सभी के लिए अनमोल, अतुलनीय और अविस्मरणीय पलों का साक्षी बनकर जीवन पर्यंत आपकी स्मृति में संचित रहे, ऐसी मेरी कामना है। मैं सभी मेधावी छात्र छात्राओं के माता पिता, उनके अभिभावक और उनके सभी शिक्षकों को भी इस अवसर पर बधाई देता हूं। साथियों, मुरादाबाद अपने पीतल के हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा इसे उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र, कॉमर्शियल सेंटर माना जाता है। राज्य सरकार द्वारा घोषित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में से एक मुरादाबाद भी है। ऐसे विश्व प्रसिद्ध व्यापार के केंद्र मुरादाबाद में IFTM विश्वविद्यालय जैसे संस्थान की स्थापना इसे और प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बनाती है। आशा है कि जो ज्ञान, कौशल और अनुभव आप विद्यार्थियों ने इस विश्वविद्यालय और अपने अध्यापकों से अर्जित किया है, वह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। IFTM विश्वविद्यालय, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, मुरादाबाद की एक प्रमुख स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय UGC एक्ट 1956 के प्रोविजन 2F के अंतर्गत स्वीकृत है तथा NAC द्वारा भी इसका एक्रेडिटेशन हो चुका है। इस यूनिवर्सिटी का विजन और मिशन आकांक्षात्मक लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। IFTM यूनिवर्सिटी ज्ञानार्जन, कौशल विकास और शांत वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विश्वविद्यालय शिक्षण पर जोर देते हुए अनुसंधान में संलग्न रहकर विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेता है और युवाओं के विकास के लिए प्रतिष्ठित संगठनों के साथ सहयोग करता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम विकसित किया है। विश्वविद्यालय द्वारा इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल स्थापित की गई है। IFTM बिजनेस इंक्यूबेशन फाउंडेशन ने 10 स्टार्टअप शुरू किए हैं। छात्रों के बीच IPR जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सेल की भी स्थापना की गई है और छात्रों के कौशल विकास के लिए IFTM सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट भी स्थापित किया गया है। इन सभी उल्लेखनीय पहलों के लिए मैं चांसलर, प्रो चांसलर, वाइस चांसलर और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे साथियों,
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 की घोषणा की थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव की संकल्पना और इसकी सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 विषय भी घोषित किए गए थे और ये विषय थे फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, रिजॉल्व एट 75, एक्शंस एट 75 एंड अचीवमेंट्स एट 75। इसके एक वर्ष पश्चात स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को 5 प्रण भी दिलाए थे। पहला प्रण था विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तीसरा प्रण अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा प्रण एकता और एकजुटता और 5वां प्रण नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। इन 5 प्रणों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे देश के विकास और हमारी अंतरराष्ट्रीय पहचान को निर्धारित करेगी। इन प्रणों की भावना को विकसित करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। हमारे शिक्षा संस्थानों के विजन और मिशन कई हद तक हमारे युवाओं की सोच में प्रतिबिंबित होने चाहिए और उन्हें एक प्रभावी विचारक और समस्या समाधान करता कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के रूप में विकसित करने होंगे। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने कई ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित दीक्षित किया है जिन्होंने अपने ज्ञान एवं व्यक्तित्व से संपूर्ण देश में IFTM का नाम रोशन किया है। अभी अभी ऐसे डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई को सम्मानित भी किया गया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के छात्र इसी तरह सतत रूप से अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते हुए अनवरत इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। शिक्षा के महत्व को बताते हुए प्रख्यात शिक्षाविद भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, The importance of education is not only in knowledge and skill, but it is to help us to live with others. The end product of education should be a free, creative individual who can battle against historical circumstances and adversities of nature. हम जानते हैं कि शिक्षा ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की आधारशिला व जीवन की अनमोल धरोहर होने के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान की भी संभाग होती है। विश्वविद्यालय वह केंद्र होते हैं जहां से प्राप्त ज्ञान और शिक्षा के द्वारा ही आप अपने सपनों और आकांक्षाओं को ऊंची उड़ान प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे हमारे युवा देश के वे निर्माण खंड हैं जो भविष्य में भारत की पहचान को आकार देने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो युवाओं की सूझबूझ और उनकी समझ ही देश को सफलता के पथ पर ले जाएगी। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, हम सब जानते हैं। 25 वर्ष बाद 1947 में जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब हमारे यही युवा डिसीजन मेकर्स तथा अपने संबंधित विषयों के विषय विशेषज्ञ बन चुके होंगे। उनके द्वारा लिए गए निर्णय ही यह तय करेंगे कि वह विकासशील भारत को विकसित भारत कैसे बनाएंगे, एक सशक्त राष्ट्र कैसे बनाएंगे। आज़ादी के बाद भारत को अब तक 3 शिक्षा नीति मिली है। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें 2020 में मिली है। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि यूजीसी के चेयरमैन के रूप में जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो इसके फॉर्मुलेशन से लेकर के और इसकी शुरुआती इम्प्लीमेंटेशन में मुझे कुछ योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन है कि भारतीय नागरिकों में भारतीय होने का गर्व उनके विचार में, उनके व्यवहार में और उनके कार्यों में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हों और ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। और इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य विजन है वो ये है कि अपनी भारतीय जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहते हुए हमें वैश्विक नागरिकों का, ग्लोबल सिटीजन्स का निर्माण करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं को समाहित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विजन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को घोषित किया था, आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उसी जोश और उत्साह से उत्तर प्रदेश में NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन पर काम चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था देश हित व समाज हित के लिए कारगर सिद्ध हो तथा प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे और नए भारत के निर्माण में शिक्षा के माध्यम से नया उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसी दिशा में विमर्श करते हुए शिक्षा को मूल्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के द्वारा भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुखों की चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगा और जो कि सभी शिक्षा संस्थानों के लिए और विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद और हितकारी हैं। गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि NEP 2020 मल्टीडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन को बढ़ावा देती है। रेगुलेशंस फॉर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, guidelines for multiple entry and exit in academic programs offered in higher education institutions, UGC regulations related to online and ODL programs and their amendments, guidelines for establishment of research and development cell in higher education institutions, educational framework for global citizenship in higher education, and also guidelines for internationalization of higher education. शिक्षा संस्थानों को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और जेंडर पैरिटी इंडेक्स को बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास करने चाहिए। शिक्षा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी कॉन्स्टेंटली और कॉन्शियसली कोशिशें जारी रखनी चाहिए तथा हमें उस शिक्षा में कम्युनिटी कनेक्ट, सोशल कनेक्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, एक शिक्षाविद होने के नाते मेरी आपसे अपेक्षा है आप अपने विषय की बारीकियों से भलीभांति अवगत हैं ही, आप में उचित संपीड़न क्षमता है, आप वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का मादा रखें, आपका आचरण संस्कारित हो, आपके अंदर समाज के प्रति समर्पण का भाव हो, पर्यावरण के प्रति आपकी संवेदनशीलता हो और आप सच्चे राष्ट्रभक्त बने। ऐसे सर्वगुण संपन्न, मेधावी, प्रतिभा संपन्न, विवेक से परिपूर्ण विद्यार्थियों को गढ़ने का दायित्व सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को उठाना होगा। तभी हम अपने देश के लिए समर्पित नागरिक तथा श्रेष्ठ वैश्विक नागरिक तैयार कर सकेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा आपको ज्ञानवान, अनुशासित और चरित्रवान व्यक्तित्व में रूपांतरित कर सके। इन्हीं विद्याओं को आज इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर अनुग्रहण करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देता हूँ तथा इस विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए और शैक्षिक उन्नयन के लिए
अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिभूत हो गया सारा स्टेज। गोल्ड मेडल recipients were left out. These are 3 candidates: MSc Botany, Samiksha Sonam, Deepali Vashne, LLM, Srishti Singh, Pranchal Chaudhary. Thank you, sir. May I have the honor and privilege of requesting Honorable Chancellor Shri Rajiv Kotiwal to kindly felicitate the chief guest with a shawl and a memento. Thank you, sir. May I now request Registrar Professor Sanjeev Agarwal ji to propose vote of thanks. Propose vote of thanks to Honorable Chancellor Shri Rajiv Kotiwal, Honorable Chief Guest Professor D.P. Singh, Pro Chancellor Shri Abhinav Kotiwal, Vice Chancellor Professor Mahendra Prasad Pandey, Faculty Deans, distinguished members of sponsoring body, governing body, executive council and academic council, faculty and staff members, friends from media fraternity, students and graduates of IFTM University. I, on behalf of IFTM University, express my deep regards and heartily thanks to our Honorable Chief Guest, Professor D.P. Singh, who very kindly accepted our request to be the Chief Guest and shared with us his vision on education on this important milestone of our journey. We are greatly encouraged by his gracious and august presence and immensely benefited by his inspiring address. Honorable Chancellor Shri Rajiv Kotiwal has always been a guiding force behind us as a mentor. We are thankful to you, sir. Hope your blessings will remain with us. We are thankful to our Honorable Pro-Chancellor Shri Abhinav Kotiwal for his untiring support and blessings. Vice Chancellor Professor M.P. Pandey, who is modest, dynamic leader and administrator with innovative and passionate ideas. His vision to invite the participation of all is visible and has brought confidence among all of us. Reviving and strengthening Alumni Association, DNP cell and IPR cell are his main concerns. We are thankful to you for the wonderful reforms which have boosted confidence. We are thankful
to the respected members of sponsoring body, governing body, executive council, academic council, alumni and distinguished guests, persons from press and media, and all the members of IFTM University family who have graced the occasion. An event like this requires proper planning and implementation. The dedicated colleagues of IFTM University have proved it. They were very much aware of their jobs and to implement the same. I would not forget to acknowledge the contribution of members of different committees without whose support the program was not possible. Thank you all. Thank you, sir. Now I request distinguished alumni to come forward for group photograph with dignitaries. Thank you all. Now I request the PhD degree recipients to come forward for group photograph with dignitaries. Thank you, alumni. Thank you, PhD degree recipients. In the same sequence, now I request gold medal awardees to come forward for a group photograph with dignitaries. Thank you. Thank you, students. Thank you all. Please have a seat, students. कामधेनु गुना विद्या है काले फलदायिनी प्रवासे मात्रदायिनी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम. Learning is like holy cow of desire, like a mother. It feeds you on your journey. It, like her, yields in all seasons. Therefore, learning is a hidden treasure. The great liberator and savior Nelson Mandela once said, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Many people never even start college and many who don't finish. You did. So be proud of yourself. I, on behalf of IFTM University, once again congratulate all the graduates for their future endeavor and success. Convocation closed. Hello. The convocation closed. Thank you, sir. Please rise for the national anthem. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय
जय जय जय जय हे Thank you all. The academic procession will now return, and I request all the present to kindly rise from the seats and keep standing till the procession leaves the pandal. दिखा दो।